Very good evening to all. Welcome. Welcome for the first session of the third season of Greener Happier Tomorrow, an interactive platform designed for plant enthusiasts to share their experiences and journeys in nurturing green life. By building a robust network of plant parents, we aspire to contribute to a better and greener tomorrow. The stories shared by plant lovers who actively contribute to creating green spaces are truly inspiring. I'm Ekta and I'm a moderator for today's session. I started my green journey with mission Every Corner Needs a Plant and initiated Parijay Genus Private Limited in April 2017 and then after 5 years Mool Srishti Foundation in September 2022 with the vision of bringing people close to nature and promoting Go Green concept by connecting environment to employment. So now let's welcome our architect Garima Gandhi. She is the expert as well as the discussant for today's session. She is the founder at Arca Landscape Design Studio. Her journey began at Design Cell in Gurugram, where she worked alongside esteemed architects Savita and Ravinder Kunde. Before that, she gained experience in Arcop in Gurgaon and Pradeep Sachdeva Design Associates in New Delhi. In 2021, she founded her own firm in Chandigarh Tri-City, collaborating on diverse projects spanning residential, commercial, hotel, industrial landscapes, having worked with renowned government representatives, prominent Tri-City architects and builders like Homeland and Jubilee. She approached her work with unwavering dedication, guided by the belief that work is worship and God is the detail. Thank you, Garima, and very welcome to the show. Thank you so much. Thank you. Now it's time to introduce our today's speaker, Mrs. Rupinder Kaur. She is a housemaker. She served as a honorary secretary for NGO CWA CRPF Wives Welfare Association for 3+ years. Her role was to look after for the welfare of family of CRPF personnel, including Veer Nari, Windows of Martyrs. In this connection, they organized health camps for families, annual welfare exhibition, different computer courses in collaboration with NGO Sahyog. Her hobbies and interests are gardening, cooking, and listening the good music. So music is always a soulful journey. And now it's time. So welcome, Rupinder ji. Thank It's you. time for our today's topic. So architect Garima, she is a landscape architect and she will be sharing few tips to enhance your interiors with the plants. Over to you, Garima. Thank you. So let me begin my topic with an understanding of what do we mean by interiors and how do we really design our interiors. So when it comes to designing interiors, we, of course, the upholstery, the colors of the walls, the ceiling, the everything, the furniture, all of this actually plays a major role. But in today's era, where there's so much pollution, where there's a dire need of plants in our interiors nowadays. And I think all of us here would agree to me when I say plants actually bring a lot of liveliness into our interiors. I mean, it's like a happy place where you have plants. Obviously, when you're doing the interiors, there are so many things that you're doing, the furniture and everything. But when you have plants, and plants also nowadays, there's a very careful selection of plants, so like, if the entire color theme of the room is white, similarly, the color theme of our planting can complement the colors of the interiors. So we can have plants, we can have syngoniums, we can have probably aglaonemas in pink color. We can have such plants which will complement the color theme of our interiors. And earlier, we didn't used to do trees. We only had little shrubs in our interiors. But now we have, so at my back also, this one's a 3.5 foot high Radmachira plant. And so we have a wide variety of plants now, which come in good heights. So, so we can get plants of good 5 feet, 6 feet high also, which can bring a lot of
liveliness into our interiors. And of course, when you have plants, they're not just bringing color, they're not just bringing liveliness into your interiors, but they also act as air purifiers. So there are so many plants like Sansevieria, the mother-in-law's tongue is the common name. So this one is a natural air purifier. There is peace lily, which also purifies your air. There are other plants as well. So yeah. Can I ask both of you, what is your favorite plant which we can use in our interiors to enhance the space? हेलो गरिमा, एक्चुअली मुझे अरिका पाम Okay, Areca palm. मेरे इंटीरियर में काफी है, जिसे देखकर मुझे मतलब डेली जैसे ही उठती हूँ ना, सामने बेडरूम से निकलो तो सामने दिखते हैं, तो एक फ्रेशनेस महसूस होती है। और घर के अंदर मैंने मनी प्लांट अलग अलग कलर्स के ना लगा रखे हैं। पीस लिली है और स्पाइडर है, ये सब है। मतलब जैसे ही सुबह देखो, हर रोज जैसे नया एक निकला होता है ना पत्ता, तो उसको देख के एनर्जी से फील होती है कि लगता है हाँ कुछ नया है, एनर्जेटिक। क्योंकि सुबह उठ के एक बार पूरा चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ, तो थोड़ा बातें भी करते हैं प्लांट से, ये सारी चीजें हैं। क्योंकि उनको भी म्यूजिक भी पसंद है, जब आप करो या बैठो, मतलब आप फील करो बैठ के, तो आपको लगता है जब हम लोग बातें करते हैं। It's like growing a baby. It's like nurturing a baby. जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम अपने प्लांट का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखते हैं सच में। तो अभी तो यही है। और दूसरा आउटर इंटीरियर में यही है, मतलब मनी प्लांट को है, इसको ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती ना। आपने एक बार लगा दिया, अलग अलग छोटे छोटे पॉट्स में मैंने जगह जगह रख रखे हैं, तो बस उसी में से बहुत सारे प्लांट्स बना लो आप, है ना। तो बस उसी में चलता रहता है, और देख के अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा देख के जितनी हाइट तक थोड़ा बढ़ा सकती हूँ तो उनको बढ़ाती भी हूँ। तो बॉटल में लगा रखे हैं, और कहते हैं हाँ पानी में नहीं लगाती, क्योंकि फिर उसके हेल्थ इशू अलग हो जाते हैं कि मच्छर आ गए, डेंगू। तो लगाया मैंने मिट्टी और ये कोकोपीट उसी उसमें है। और जहां तक इनकी केयर जैसे देखना है या करना है, पानी देना है, तो हमेशा मतलब फिंगर से टच करके चेक करती हूँ कि इनमें नमी है, फिर नहीं देना। क्योंकि कुछ प्लांट्स हैं जिनको आपको डेली पानी देना है, कुछ हैं जिनको मतलब जरूरत नहीं होती है। ऐसी पीस लिली का एक किस्सा सुनाती हूँ। पीस लिली एक दिन मतलब मैं कहीं बाहर गई हुई थी, घर आई, आके देखा वो एकदम गिरा पड़ा था। तो मुझे लगा मेरा प्लांट खराब हो गया। मैंने आते ही उसमें थोड़ा सा पानी डाला। जैसे मैंने पानी डाला, उसका रिएक्शन देखा कि थोड़ी देर में वो खड़ा हो गया। मतलब मुझे क्या फील हुआ मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बड़ा मजा आया देख के उसको ना। यही छोटी छोटी चीजें हैं। और इंटीरियर का तो यही है, बाकी मैंने आउटर में भी लगा रखे हैं काफी प्लांट्स ना। और और इसमें एक छोटी सी मैं इसमें लाइन ऐड करना चाहूंगी, जैसे आपने बोला, तो अगर हम आजकल हम देख रहे हैं पीपल आर गोइंग अंडरगोइंग डिप्रेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। सो प्लांट्स हमें मेडिटेटिव एक स्पेस, एक ऑरा भी क्रिएट करके देते हैं, जो कि एक हेल्दी स्पेस बन जाती है। और एक्चुअली घर में वही है कि इंटीरियर में ला रखे हैं, आपको पोल्यूशन नहीं है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, मतलब आपको बहुत सारे हेल्थ में मतलब फायदे होते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता कि क्या क्या फायदे होते हैं। वही सारी चीजें हैं। और ये जैसे हाँ। So, I will add a tip here. If you are a plant enthusiast and if you want to enhance your interiors with plants, अगर आपका room space छोटा है, I would advise that you go for a plant which has smaller leaves, because we already have the space is less, so हम वो space को और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते by adding big leaves. So ताकि अगर छोटी पत्ती यूज करेंगे तो हमारा रूम वो बड़ा नहीं लगेगा। सिमिलरली इफ यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, और अगर हमारे पास काफी सा लंबा रूम है, लाइक अ लिविंग रूम, लिविंग डाइनिंग कंबाइन है, वहां पे हमें करना है, वहां पे हम इस तरीके से प्लांटिंग चूज कर सकते हैं कि like layers of planting. So we can start with a smaller leaf plant like a machira or like a jade, like that, जो हमारे indoors में चल जाए, and then we can choose a plant which has bigger height than these, and the leaves are also wider.
लाइक वी कैन गो फॉर हम्म पोथोस, मनी प्लांट की वैरायटी, या मॉन्स्टेरा हो गया, कुछ ऐसे ले लें जिसकी पत्ती बड़ी हो। सो जब आप हम्म उसको वो एक लेवल्स में जब आप प्लांट्स को देखेंगे ना, छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, वो आपके हम्म आपकी स्पेस को मतलब अच्छे से यू कैन carve your space in such a manner that it looks nice. So if you have a smaller room, go for smaller हम्म leaf indoor plants. If you have हम्म bigger rooms, then you obviously have a wide variety of planting. ओके Uh, हाँ जी। so Rupinder ji, Garima, you will be doing the discussion. So our first question to you is, so tell me about yourself as nowadays. जैसे आपकी हमने introduction में देखा कि you have worked so for the CRPF women and Veer Nari. So what's your journey? And I think you have you led a lot of plantation drives also. So what is your experience and how you get motivated from all this? एक्चुअली मतलब मेरा ब्रॉटअप तो यही चंडीगढ़ का है। जब हम बचपन में जैसे रोज गार्डन गए या लेक पे गए तो बहुत अच्छा लगता था। तो घर आके लगता था रोज गार्डन में ब्लैक रोज देखा एक बार मैंने, तो मुझे लगा कि नहीं ब्लैक रोज घर पे लगाने हैं, तो हमने लगाए और वो बहुत अच्छे ग्रो हुए। तो ये तो बचपन से ही है मुझे कि हाँ प्लांट्स लगाने हैं, ये सब चीजें करनी है। तो फिर लकीली उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में है, तो मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर इंडिया घूमने का मौका मिला। तो जहां जहां भी हम लोग गए बहुत सारा काम किया। तो प्लांटेशन का एक मैं बताती हूँ कि हम लोग ग्वालियर में थे पोस्टेड। जो ग्वालियर में हमारी फर्स्ट पोस्टिंग आई वहां पर हम लोगों ने प्लांटेशन कराई, क्योंकि एकदम नया कैंपस था। पर भी सब लोग काम वगैरह अभी तो स्टार्टिंग था, तो मुझे लगा ये कहाँ आ गए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम लोग हर वीकेंड पे ना सारी फैमिलीज लेबर्स के बच्चे और सब लोग मिलके प्लांट्स लगाते थे। हर वीकेंड पे वो हमने क्या कर रखा था, बच्चों के नाम की वहाँ प्लेट लगा रखी थी, ये आपका ये आपका है। तो शाम को सब बच्चे उनको पानी देते थे। तो जैसे ही मतलब कुछ किसी का कुछ निकल रहा है, आंटी ये निकल रहा है, पत्ता निकला, आप मेरा प्लांट देखो, आप मतलब वो बहुत अच्छा लगता था देख के। और फिर हम लोग लकी रहे कि हमें आफ्टर 2 इयर्स दोबारा फिर पोस्टिंग मिली वहां पर। तो जो हमने पेड़ लगाए थे उनका फायदा उसके बाद की पोस्टिंग हमने खूब एंजॉय किया। मतलब शाम बैठना, जैसे दिन में हम कहें गर्मी में 12 बजे तक बाहर कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन हमारे लॉन में पेड़ों मतलब बैठ के इतना अच्छा लगता था अंदर जाने का मन नहीं होता था, क्योंकि बाहर अच्छी हवा और नेचुरल। जैसे हम लोग मैं वहां बाजरा डाल दी थी, वहां पर ना हर तरह के मतलब पैरेट तो आते ही थे, गिलहरी, चूहा, चिड़िया, सब आके इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। तो वो बहुत ही अच्छा लगता था। और दूसरा एज मतलब हम लोगों का ये सीआरपीएफ का जो आप हम बात कर रहे हैं, सीआरपीएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके प्रेसिडेंट हमारे डीजी की वाइफ होती हैं। बाकी जैसे हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हमारे अलग अलग सेंटर हैं, वहां पर आरसीडब्ल्यू हेड होती है जो सारी एक्टिविटीज करवाती हैं, जो दिल्ली से हमें बताई जाती हैं। वो एक साल का हमारा पूरा कैलेंडर हमारा बन जाता है, जिसमें जैसे एनवायरमेंट डे पे या और बहुत सारे दिन होते हैं जब हम लोग मास प्लांटेशन करवाते हैं। पूरा मतलब पूरा ग्रुप सब लोग वही ही होते हैं। और ये तो मैं लगभग जितने साल यहाँ जॉब मतलब रही हूँ साथ, तो हर साल हमारा ये कंट्रीब्यूशन है। मतलब अपने हाथ से ज्यादा पेड़ लगाए, खुद भी लगाए हैं। उनको देख के मतलब बाद में जब हम लोग कभी मौका मिलता है दोबारा उस स्टेशन पे जाते हैं, तो जब हम उनको देखते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो हमने कुछ तो किया। और दूसरा ये जो हम लोग वीर नारी वाला ये एनजीओ इसमें हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली शहीदों की वाइफ्स होती हैं। क्योंकि सिपाही तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन हम लोग अपना घर में वो सारी चीजें देखते हैं। तो ये कई बार वही प्रॉब्लम, शहीद हुए घर में कई चीजें, हर तरह की हेल्प हम उन लोगों को करते हैं। फाइनेंशियल तो हम लोग करते हैं उनके बच्चों के लिए। हम लोग अलग अलग कोर्सेज चलवाते हैं, क्या क्या चीज है जितनी हेल्प मतलब हम लोग कर सकते हैं अपना हमारा एनजीओ करता है। बाकी ऑफिशियल तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो रेगुलर चलती रहती हैं। ये सारी चीजें जैसे हम लोगों का फिर साल में एनुअल एग्जीबिशंस रहता है, इसमें ये लोग लेडीज जैसे कुछ बनाती हैं चीजें सारी, वो ऑल ओवर इंडिया से फिर हम लोग वहाँ डिस्प्ले करते हैं, सेल लेते हैं, तो इससे उन लोगों की इनकम भी होती है। हम्म। और हर साल हम लोग व्हील चेयर्स भी देते हैं हैंडीकैप लोगों को, वो भी हमारा एनजीओ हर साल करता है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। जैसे बहुत सारे जवान अपना मतलब ड्यूटी में एम्बुश है हो गया या कुछ इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है,
हैंडीकैप हो जाते हैं, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारा है दिल्ली में, जो सहयोग की मदद से, सीआरपी की मदद से मतलब हम लोग चलाते हैं। तो वो कोर्सेज करवाए जा सकते हैं ताकि वो फिर आगे अपना कुछ काम कर सके, ऑफिस में उस तरह की ड्यूटीज कर सकें और चीजें कर सकें। ये सब ऐसे ही हमारा अभी दिल्ली में भी एक आउटलेट बना रखा है, जिसमें वही इन लोगों की बनाई हुई चीजें, लेडीज की बनाई हुई चीजें डिस्प्ले होती हैं और सेल होती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग करते थे, और करने में मजा भी आता था क्योंकि मुझे मौका मिला। मैं सोच रही हूँ कि मैं लकी हूँ कि हाँ मैं कुछ कर पाई इन लोगों के लिए, ये सेटिस्फेक्शन सी होती है। हम्म। तो हम्म। जैसे प्लांट्स में हमारे एक, जैसे इन ह्यूमंस आल्सो देयर इज अ बैकबोन, ऐसे प्लांट्स में भी हमारे एक मेन ब्रांच होती है, ऐसे भी हम्म। फोर्सेस में आई थिंक लेडीज वो फोर्स है। वो सही होती हैं तभी हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क बना रहता है और इतना कुछ कर पाते हैं। कर पाते हैं, सही बात है। बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब आप इनमें लग जाते हैं, एक्टिविटीज में चले जाते हैं, तो आप उन लोगों की भी हेल्प करते हैं, उनको भी अच्छा माहौल देते हैं, उनकी मतलब उनको ये लगता है कि हाँ हमारी प्रॉब्लम सुनने वाला कोई तो है। ये हमारे हर ग्रुप सेंटर में, ये नहीं कि उनको स्पेशली दिल्ली आना पड़ता है या कुछ, जिस जिस स्टेट्स की हैं वहीं वहीं पर हमारे सेंटर भी हैं, तो वो उनके टच में रहते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं, हम उनको बुलाते हैं, ऑनर करते हैं, सब चीजें, मतलब वो सब चीजें चलती रहती है। रेगुलर प्रोसेस है ये हमारा ना। हम्म। और आपकी फैमिली में अदर देन यू इज देयर एनीबडी एल्स हु लव टू केयर और गार्डनिंग का शौक हो, प्लांट्स को देखभाल करने का शौक हो? हम्म। हम तीनों, मेरा बेटा भी, हस्बैंड भी, हम जब भी जाते हैं मतलब बहुत सारे प्लांट्स ले आएंगे। अच्छा, मतलब वो नहीं, नाम मुझे नहीं कि नाम याद रखे कौन सा क्या है, बस जो नर्सरी में अच्छा लगा मैं ले आई, बस उसकी केयर कर दी। और बेटे का भी यही है, वो ज्यादातर इंटीरियर प्लांट्स लाता है। जैसे ओके। जाएगा कुछ कुछ ले आएगा, बस वो केयर उसके बाद है कि जिसको दिखता है कि हाँ अब इसमें पानी डालने वाला है या इसको कुछ करने वाला है, तो बस कर लेते हैं मिलजुल के, तभी एक्चुअली हो पाता, नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी आए, सब पूरे मिलजुल के लगे रहते हैं, और इसी में मन लगा रहता है एक्चुअली ना। अच्छा भी, वही आपका कहना, आपने कहा था ना बच्चे हैं, बच्चों की तरह ही पाल रहे हैं इनको। बिल्कुल। सही है ना। मैं एक एक लाइन में ऐड करना चाहूंगी व्यूअर, हमारे व्यूअर्स के साथ, कि अगर हम्म। आप प्लांट लवर हैं तो कोशिश करिए आप प्लांट्स खुद से प्रोपोगेट करिए। हम्म। आप instead of buying all the plants from the nursery, अगर हम खुद उनको 1 से 4 कर रहे हैं, 1 से 5 कर रहे हैं, then you can call yourself a real plant सही कह lover. सही कह रहे हो आप। ये ऐसे कोशिश रहती है मेरी, ज़्यादा प्लांट है उसको मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, मतलब हम्म। एक था मेरे पास, अभी तो अलग अलग, फिर मैं उनको भी शेप्स भी दे रही हूँ, चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। हाँ, वो सारी चीजें हैं। ठीक है। और जैसे आजकल लोग बॉन्साइज क्रिएट करते हैं घर में हम्म। और कुछ ना कुछ स्प्लिट ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, हम्म। तो ऐसी कुछ कोशिश आपने कभी करी है? नहीं, ऐसी कोशिश तो नहीं की मैंने। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी ना पीछे मम्मा ने मेरे, जैसे आम खाया कुछ खाया, प्लांट वो वहां पर लगा देते थे घर में, तो अभी पीछे हम्म। गई तो उसका बहुत अच्छा आम का पेड़ हो रखा था, और मैंने लाके अपने गार्डन में लगा लिया। तो मुझे लगा हाँ उनकी निशानी भी है, ये आम तो देगा ही थोड़े दिनों में, कुछ टाइम में तो देगा ही पेड़ ना। जी। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, आपको विश्वास होगा कि हमने दिसंबर में आम खाए तोड़ के अपने पेड़ से। अच्छा। दिसंबर ओके। में? दिसंबर में, हाँ एक्चुअली मेरा वो हमने लगा रखा था पेड़ ना, आम का, ऑल वे मतलब 12 मासी जो कहते हैं जिसको, तो हाँ। वही उसने दिया फल हमें, और अभी मैंने मतलब फर्स्ट इसी सीजन में ही लगाया था, तो सर्दी वाला फल उसने दिया। और भी पेड़ मैंने भी लगा रखे हैं, फ्रूट्स के ज्यादातर पीछे लगा रखे हैं मैंने। मैंने नींबू का, और इस बार हम मुझे कीनू भी मिला, जूस पिया हमने सर्दियों में, फर्स्ट अपना फ्रेश वही। और अभी मैंने एक्चुअली लीची लगवाई है, अनार लगाया है, और एक और बात बताऊं, मैंने सेब का पौधा भी लगाया। मुझे लगा कि जैसे अभी सर्दी में वो मर गया, नहीं होगा, लेकिन अभी कल परसों ही मैं देखी तो उसमें छोटा सा मतलब निकल रहा है पत्ता, तो इट मीन्स वो भी बढ़ेगा। और अंगूर की बेल, पीछे मेरे थोड़ी सी जगह है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रूट्स के ही पेड़ लगा लिए जाए ना। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। हम्म। जी।
So I think we should have a tour of her small plants. So I'm Sure, we would love to see their plans. yes. So this is the indoor plantation she has arranged. So as जैसे उन्होंने बताया कि उनको अरिका palms, no doubt अरिका palms is a very good air purifier plant, and हम्म they are beautifully arranged, and we can see a beautiful money plant at the center of the dining table. सो रुपिंदर जी, क्या आप शेयर कर सकती हैं कि आपके पीछे आपने बताया कि ये आपको अरिका पाम पसंद है और आपने मनी हम्म प्लांट्स लगाए, तो हम्म जैसे हम्म जब आप प्लांट सेलेक्ट करते हैं या कहीं पर जाते हैं, जैसे अभी हम बाहर गार्डन में भी इंटीरियर आपका देखा, अब एक्सटीरियर हम्म में भी देख रहे हैं कि लॉट ऑफ पाम्स पाम्स की हम्म वैरायटीज हम देख रहे हैं, हैंगिंग में भी हैं। सो जब आप हम्म प्लांट लेते हैं या लगाते हैं, तो आप कैसे, क्या थॉट प्रोसेस रहता है आपका कि मुझे कहाँ पर क्या लगाना है, क्यों लगाना है? तो ऐसे भी कुछ थॉट प्रोसेस रहते हैं आपके? हाँ एक्चुअली जब एक तो मेरा रहता है कि सीजनल फ्लावर्स जरूर हो घर में ना। तो जैसे सीजन जी सर्दी में सर्दी के लगाए पटोले तो अभी तक चल रहा है ना। तो अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है तो मैंने गर्मी के भी स्टार्ट कर दिए लगाने। तो अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही लगवाए हैं और थोड़े से गमले रखती हूँ। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि परमानेंट प्लांट्स लगा लूं। जैसे मैंने लेडी पाम लगा रखा है और ये बोगनविला लगा रखा है, ये सब लगा जी रखे हैं। और हैंगिंग वालों को कोई ज्यादा तो वो नहीं है इनमें, बस थोड़ा कोकोपीट और मिट्टी मिक्स करके लगाए। बस वही पानी हर प्लांट को वही देख के लगाना है, देना है कि जरूरत है तो देना है, कि नहीं तो नहीं देना बस। ये थोड़ा सा जी ध्यान रखना पड़ता है। इवन बोगनविला में भी ऐसे हो जाता है, मैंने ये चेक देखा है कई बार कि कुछ प्लांट्स हैं बोगनविला के जो एकदम सूख जाते हैं, कुछ है जिसमें नमी बनी रहती है। तो फिर उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी करते रहते हैं। जी। हम्म सो हम्म जैसे हम अभी पिक्चर में देख रहे हैं कि आपका ये लॉट बहुत सारे बोगनविलिया जो हैं वो लगे हम्म हुए हैं, हम्म एंड हम्म काफी कलरफुल भी हैं। हाँ सो मुझे लगता है कि शायद ये आपकी बैल्कनी है। हाँ हाँ हाँ। जी। फ्रंट तो में बालकनी। कैसे आपने इनको ग्रो किया, एंड कितना टाइम हो गया आपको इन प्लांट्स को ग्रो करते हुए? इनको 2 इयर्स हो गए एक्चुअली। मैंने टू पहले, इयर्स हाँ 2 इयर्स हो गए। पहले मैंने बहुत सारे प्लांट्स आउटर में लगाए लेकिन नहीं चले वो। फिर मैंने सोचा, क्योंकि कई बार बाहर भी जाना पड़ता है, बहुत सारे होता है कई बार ना, तो पानी की भी दिक्कत होती थी और वो प्लांट्स मर जाते थे। तो मुझे लगा ये बेस्ट प्लांट है, इसको आप कई दिन पानी भी नहीं दोगे तो ये चलेगा। और फिर दूसरा क्या है, ये 12 महीने आपको फूल देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। मैंने अभी ऊपर भी लगा रखे हैं, सबसे ऊपर टॉप पे भी। वो धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ उनकी बेल नीचे आएगी तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि आउटर में ज्यादातर मैंने बोगनविला कर दिया अभी ना। हम्म। सो अभी यस। हम आपका एंट्रेंस भी देख रहे हैं, तो फुली हम्म वो ग्रीन सुंदर पौधों के साथ डेकोरेट किया गया है। हम्म। सो दिस इज द ब्यूटीफुल रोज, येलो हाँ रोज इन योर गार्डन। यस। इसको देख के तो भी मतलब मजा आ जाता है। अभी थोड़े से और रेड वाले भी मेरे निकल रहे हैं, ना रोज देखती हूँ थोड़ा 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 हो रहे हैं। एक्चुअली जी रोज की एक प्रॉब्लम बताऊं, मैंने बहुत रोज लगाया था, मतलब 7 to 10 पौधे लगाए होंगे। ज्यादातर मर जाते हैं क्योंकि जमीन में शायद दीमक है। फिर उसके बाद हमने ना जब भी रोज का ये लगाया पौधा तो नीचे थोड़ी सी ये लगाई हमने, मतलब डाली, दवा डाली। फिर उसके बाद इसको पौधे को लगाया, डीडीटी डाली थी, फिर जी उसके बाद उनके साथ मिक्स करके लगाया। तो उसके बाद मेरे ये दो जो चल रहे हैं ना तो बहुत अच्छे हो गए। नहीं तो लगाती थी, जी 2 फूल देता था और चले जाते थे। तो ये मुझे लगा जी। अच्छा है। हम्म। मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, जहाँ पे दीमक और इसी इसी चीजों की प्रॉब्लम है, वहां हम्म। पर हम लोग हींग, फिटकरी और हल्दी ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि चलो। जी जी, तो हम्म हींग जो है वो क्या किया जाता है कि जिस जमीन में वो रहती है ना, दीमक रहती है, तो छोटे हम्म से कॉटन की पोटली में, कॉटन कॉटन का कपड़ा लेके उसकी पोटली के अंदर हम लोग इस तरह से हींग, हम्म फिटकरी ये वाली हम्म बांध कर, जहां से पानी लगाते हैं ना, उसके आगे हम्म। रख दें, वो धीरे धीरे पानी में घुलकर जो है वो पूरे उसमें लग जाता है। तो ओके। उससे जो है वो दीमक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक ठीक। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी लगे तो आप हींग हम्म का यूज कर सकते हैं। प्लांट को रीप्लांट करना हो तो उसमें हम लोग हल्दी भी करते हैं। हमने एक अराउंड 5-6 इयर्स ओल्ड प्लांट था,
तो वो हमें रीप्लांट करना था। तो उस टाइम पे वी यूज द हल्दी, हम्म पीक सीजन था मई जून हम्म वाला। तो हमने अच्छा, जब उसको निकाला पौधे को, फिर हमने उसको अच्छे से जमीन में भी हल्दी डाली और उसकी रूट्स पे भी हल्दी का पानी बना के उसका स्प्रे करके फिर उसको रूट किया। देन वो प्लांट बहुत अच्छे से फिर ग्रो हुआ। सो हल्दी, हींग एंड फिटकरी ये चीजें भी पौधों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो हम्म सो हनी भी हम यूज कर सकते हैं जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, या जब हम कटिंग्स के साथ जब हम ग्रो कर रहे हैं ना, तो उससे बड़ी जल्दी रूट्स निकलते हैं। हनी के अंदर पॉट डिप करके फिर हम उसे अगर रीप्लांट करें तो जल्दी होता है। और एक और वन लास्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव इज कि जब हम सीड्स ग्रो कर रहे हैं ना, हम सीड से अगर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जो आजकल मोस्टली बिगिनर्स बहुत हैं जो चाहते हैं कि हम सीड से प्लांट खुद से अपना नया प्लांट उगाएं, तो उस इंस्टेड ऑफ पुटिंग द सीड्स इन सॉइल, यू फर्स्ट ओवरनाइट आप उसको पानी के अंदर रखें सीड को। ओवरनाइट या कुछ दिन आप देखेंगे उसके अंदर से ही रूट्स निकलने लगेंगे। जब आपने देख लिया कि रूट निकल गया है, उसके बाद फिर आप उसे सॉइल में डालें। सो बेसिकली यू आर अश्योरिंग दैट देर इज नो मोर्टालिटी। आपकी सीड पक्का फ्लरिश करेगी क्योंकि ऑलरेडी उसके रूट्स आ चुके हैं। कई बारी क्योंकि बहुत डीप हम सो कर देते हैं सीड्स को ना, जैसे आधे इंच दबाना था उसको 2 इंच नीचे दबा दिया तो वो ऊपर तक आ नहीं पाता। तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम पानी के अंदर सो करके कर रहे हैं तो। सो और कोई टिप्स रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ कुछ आप बताना चाहें किसी को? एक्चुअली मैं तो वर्मी कंपोज ही रेगुलर डालती हूँ सारे ओके। प्लांट्स में ना। हाँ, बस यही वाला यूज करती हूँ, उससे प्लांट्स काफी अच्छे हो गए। एक्चुअली इस बार सर्दी इतनी पड़ी तो सारे प्लांट्स मतलब ऐसे लग रहा था कैसे होंगे दोबारा। लेकिन अब देख रहे हैं तो सारे, मेरा ये मधुमालती मैंने बेल लगा रखी है ना जो, अभी बहुत अच्छी हो गई दोबारा ना। तो देख के बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़े दिन पहले ही हुई है अभी ना। हम्म। तो बाकी भी प्लांट्स अब चल गए, तब तो लग रहा था इनको दोबारा क्या करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अपने आप ही वो तो नेचुरल प्रोसेस है, हो जाती हैं चीजें ना। थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। हम्म सो जैसे आपने बताया कि आपने सिर्फ ऑर्नामेंटल ही नहीं, फ्रूट्स के भी प्लांट्स लगाए हैं। सो आप हम्म। उसका फ्रांसिस, तो इसका मतलब हम लोगों को पार्टी करने के लिए आना पड़ेगा आपके पास। हाँ जरूर। फॉर द फ्रूट पार्टी ना, ऑर्गेनिक फ्रूट्स पार्टी। ऑर्गेनिक सो आप फूड। कुछ और तरह के, जैसे ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग हमने आपका देखा, फ्रूट्स आपने बताया कि आप फ्रूट्स के प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं और उसका फ्रूट भी एंजॉय कर रहे हैं। सो हम्म। किसी और तरह के प्लांट्स भी आप लगा रहे हैं? हाँ जी, कौन से किसी प्लांट्स? और तरह के प्लांट्स भी आप हाँ लगा रहे हैं, लाइक हाँ हाँ, मेडिसिनल या वेजिटेबल्स कुछ? वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। एक्चुअली पीछे मेरी थोड़ी जगह है तो कोशिश करते हैं थोड़ी, अभी जैसे भिंडी, थोड़ा पालक, ये शिमला मिर्च और सारी ये बेलें लगा रही हैं। वो मैंने छत पे ग्रो बैग करके फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो उसमें मैंने सारी बेलें लगाई हैं, घिया, तोरी, ये करेला, ककड़ी। अभी थोड़ा वो भी मतलब रोज देखती हूँ बढ़ती जा रही है। हाँ, तो लास्ट ईयर भी मैंने लगाए थे घिया, तो काफी अच्छे हुए थे, काफी बड़े बड़े और अच्छे हुए थे। लास्ट में ना। और उससे पहले मैंने तोरी लगाई थी एक बार, तो वो भी बहुत अच्छी हुई थी। और एक्चुअली क्या है ना, जो हम मतलब अपने गार्डन में ग्रो करते हैं, ये सब्जी आप खाओ, भिंडी इनका टेस्ट ही अलग रहता है। मतलब वो मार्केट वाली ना तो उतनी अच्छी बनती है, ना खाने में मजा आता है। इनको जब बना के खाते हो तो लगता है कि हाँ बार बार खा, मतलब मन करता है कि खाओ खाओ, है ना। यही है। हम्म नो डाउट, जो हम लोग लाइन बोलते हैं ना बार बार के, ग्रो योर ओन फूड, है ना, ग्रो हम्म योर ओन दिस थिंग, ओन फार्मा, ग्रो योर ओन फूड। सो मुझे लगता है कि आप उस पर बहुत ही सक्सेसफुली अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। एंड आर टैग लाइन दैट एवरी कॉर्नर नीड्स अ प्लांट विच इज क्लोज टू आवर हार्ट। एंड जैसे हम्म आपके घर का हमने देखा, सो बहुत अच्छे से आपने सारे पेड़ पौधे लगा के और उनको बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। सो हम्म आई वुड लाइक, सो कुछ और आप अपने हमारे ऑडियंस के साथ कोई मैसेज, कुछ टिप्स कुछ उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगी, मतलब जिस तरह से आजकल ग्लोबल वार्मिंग, हम लोग रोज घर में बैठे कह देते हैं बहुत गर्मी हो रही है बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं?
हम कर तो नहीं जी रहे, मतलब वो कुछ ही लोग हैं जो लगे हुए हैं, जैसे आप हो, इतनी प्लांटेशन करवाते हो, मतलब मुझे वही इंस्पिरेशन मिलती है आपसे सामने देख देख कर कि हाँ आज नया चीज लग गई। तो इसके लिए तो हमें यही है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ और बहुत सारे पेड़ लगाओ। और आपके लगाए हुए पीछे त्रिवेणी लगाए थे हम लोगों ने जब मिलके पीछे, और जी मेरे तो खैर जी डेली देखती हूँ और बहुत अच्छे चल पड़े वो हमारे पीछे पार्क में। तो यही चीजें हैं कि हमें कुछ भी मतलब लगाओ आप, प्लांट कहीं भी लगे, अगर कहीं आपके चारों तरफ लगे हुए हैं उनको आप देखो, लुक आफ्टर तो करना पड़ेगा ना। किसी ने लगा के छोड़ दिया या किसी की कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनको कम से कम देखो, तो वो ग्रो होंगे। फिर जब ग्रो होंगे उसमें बैठते हैं ना जहाँ आके चिड़िया या कुछ और चीज में, बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बाहर ना एक्चुअली पार्किंग एरिया में एक बहुत फाइकस लगा रखा है मैंने, छोटा वाला ना, तो वो इतना हैवी हो रखा है ना, आज मैं उसके नीचे खड़ी हुई थी, मैं देख रही थी कि ऊपर से मुझे बिल्कुल धूप कुछ नहीं दिख रहा था। इतना मतलब है कि उसमें जो जानवर अपना घोंसला बनाते बनाते हैं, मैंने देखे लास्ट ईयर बनाए थे। और जैसे ये सब स्ट्रे डॉग्स हैं आके वहां नीचे बैठते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं कुछ कर पा रही हूँ इन लोगों के लिए ना। तो वही सारी चीजें हैं कि जितना आप कर सकते हो नेचर के लिए, जितना नेचर के नजदीक रहो, जितना आप कर सकते हो करने की कोशिश करो। हम्म। जी। तो दैट मीन्स कि यू आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम कि जो कि सबके लिए लाइवली है। क्योंकि हम्म। हम कहते हैं ना कि अगर कोई हमारे घर में घुसता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से जब हम पेड़ पौधे काटते हैं या इस हम्म। तरह का इकोसिस्टम, हर अलग तरह का, ये मैं पहले भी अपने सेशंस में कई बार रिपीट कर चुकी हूँ कि हर पौधे, हर पक्षी का अपना एक चॉइस होती है कि उसको किस पेड़ पर हम्म। घोंसला बनाना है। और हम क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं जो लगे हुए हैं और अपनी चॉइस के पेड़ लगा रहे हैं बिना ये सोचे कि वो किसी का घर हो सकता है। सो एक घर किसी को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अ ब्लेसिंग कि आप हम इतने कैपेबल हो जाए। तो जरूर है, अगर हम किसी का घर बना नहीं सकते तो हम उस घर को खराब भी ना करें। सो इसी कोशिश के साथ हमें पेड़ पौधों की देखभाल, क्योंकि हम लोग अकेले नहीं है, ये हम्म। जो हमारा प्लेनेट है, जो मदर अर्थ है, वो हम सबकी है। सो गरिमा हम्म। जी, वुड यू लाइक टू आस्क और शेयर समथिंग? So I have a question in mind. We are also live on Facebook. I want to ask a question to all the viewers. You can comment down in the chat box होगा Facebook पे, आप उस पे comment कर सकते हैं जो मेरा question है. So my question is, there is a plant called adenium. इस plant को आप, how often do you water this? This is my question, which I am leaving to the viewers. We will expect your answers in the comment box. And since this is a series that we are starting, आज हमारा first session है Greener Happier Tomorrow with Parija Genius. तो हम ये कंटिन्यू करेंगे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें काफी सारे आंसर्स मिले, और हम इसका आंसर डिस्क्लोज नेक्स्ट सेशन में करेंगे. That's wonderful. Adenium is a very Plant's good name is plant. Adenium. हाँ जी, प्लीज Yes, करें. adenium is a lot of variety, colorful flowers, such a good plant. So it's a very nice initiative that we can discuss with the viewers so that they can also brainstorm and get involved in these sessions. So I think प्रांजल ने हमें ज्वाइन किया है. प्रांजल, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे या आप कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो प्रांजल, आर यू देयर? चलिए. सो ये हमारा थर्ड सीजन है. हमने ग्रीनर हैप्पियर टुमारो स्टार्ट किया था 5th of June, Environment Day in 2021. This is our third season, and thank you Rupinder ji for joining us for the first session, and thank you Garima for being in our core team to organize these sessions and sharing the tips with our viewers. So I hope this is the first but not the last, and we will continue with this journey for the long time, and get connected to the plant lovers and the lovers. Here I would like to share that we talk about, गरिमा आपने बहुत ही अच्छा बोला कि हम प्लांट लवर तब होंगे जब हम एक पौधा लेकर आएंगे और उससे और प्रोपिगेट करेंगे. सच अ हम्म। ब्यूटीफुल थिंग यू सेड. बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड लव. व्हेन वी लाइक समथिंग देन वी ब्रिंग दैट थिंग एट आवर होम, एंड फिर उसके बाद हम उसको ठहरे थोड़ी देर, हमारा मन करता है, एंड देन वी लीव. सो इट इज नॉट विद द प्लांट्स. क्योंकि जब हम प्यार करते हैं चीज को तो हम उसको नर्चर करते हैं,
हम उसकी केयर करते हैं, उसको नर्चर करते हैं. So that's what we need in case of the plants, because plants are not the materialistic things. Plants are the living things. They are the life. And whenever we buy a plant, we bring a plant at our home, or we see the plants around it, we consider them as a living thing. और हमें उनके साथ वैसे ही बिहेव करना है जैसा कि हम और लिविंग चीजों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ करते हैं. एंड बिलीव मी, जैसे रुपिंदर जी ने भी बोला कि जब आप घर आए, आपने उसको पीस लिली को देखा, तो आपने उसमें पानी डाला, तो आई थिंक आपको एकदम से समझ में आया कि उस पौधे को क्या चाहिए, क्यों वो इतना उदास हो रहा है. उसको प्यास लगी थी, आपने उसको पानी दिया, एंड उसने अपनी पत्तियों को फैलाकर आपको वो ग्रेटिट्यूड, आपको वो थैंक यू बोला. वो स्माइल, वो उसका रिएक्शन था जो आपने उसको गिव बैक दिया. सो इट शोज कि भी हाँ जी, वो प्लांट्स भी जो है एक आपको रिएक्शन देते हैं, आपकी हैप्पीनेस जो है शो करते हैं. सो वी शुड लव आवर प्लांट्स. वो आपसे कभी डिमांड नहीं करते, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी थोड़ा सा समय मांगते हैं. एंड एग्री कि भी हाँ जी, इस भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है. बट स्टिल, for our survival and for our future generation survival, we have to find out the time. कभी कहीं रुकना होगा. हम कार पार्किंग में कार लगानी है, तो हमें पेड़ चाहिए, नहीं तो वापस आएंगे तो कार पूरी गर्म होती है. यहाँ तक कि स्टीयरिंग्स भी इतने गर्म हो जाते हैं कि उसको ड्राइव करना भी मुश्किल होता है. टू व्हीलर्स में भी सेम सिचुएशन. सो इफ वी वांट टू सर्वाइव, ठीक है, आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की. सो बेसिकली वी आर चेंजिंग द नेचर, बट हम लोग उस भूल जाते हैं कि नेचर सुप्रीम पावर है, और नेचर जो है वो अपने आप को बैलेंस करेगी ही. सो इट्स आवर चॉइस, वी वांट टू गो टू द डिस्ट्रक्शन और वी वांट टू द prosperity. So let's choose prosperity, not the destruction. With this note, I am closing this session. If anything you would like to add on, Rupinder ji and Garima ji. Thank Let's you make so much. greener, happier tomorrow. So yes, the greener, happier tomorrow. The journey should continue forever. And thank you everybody for joining us. Thank you, Rupinder.